हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर देसा, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूर्ख मुगदा जन्म भया, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूर्ख मुगदा जन्म पया, पर्णवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरया, पर्णवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरया। दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग चवर छतर तखत दे मालिक, जुगो जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दी ओ पावन पवित्र धरती, जिस जगह ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे लखते जिगर बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, तीन प्यारियां ने और होर गुरसिखां ने धर्म युद्ध दे विच शहादत दा जाम पीता है। हर बरे पिछले कुछ सालों तो असी ये विशेष गुरमत दीवान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्ण सहयोग नाल और चमकौर साहब की सिख संगत के सहयोग नाल
ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਕੱਲ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਤਲ ਬੋਧਿਕ ਤਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਧੁਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਖਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੰਗੜ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਪਏ? ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਰਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਏ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਗੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਲੜੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਕਮ, ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾਪਣ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਮਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਦਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਤੇ ਊਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੁਆਤ ਨੀਚ,
नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। सुनियो, वड्डियां स्यों क्यों रीस। बस यही टक्कर सी एक इत्थे भी। अपने आप नूं हुकूमत दे तौर ते वड्डा जानना, जात दे तौर ते वड्डा जानना, ताकत के तौर ते वड्डा जानना। बाबा जी ने कहा वड्डियां स्यों क्या रीस। वड्डियां दी रीस नहीं, जिथे नीच ने उथे तेरी बख्शीश है। कला क्या नहीं, एक हुंदा कहण मात्र कह देना। फिर सब तो पहला जिहदी चोण कीती ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 1480 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1534 ਤੱਕ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਤਕਰੀਬਨ 54 ਸਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ 48 ਲਿਖਦਾ। मैं फिर बेनती करांगा 1480 तो लैके 1534 तक तकरीबन अद्धी सदी मान के चलो उन्हें रबाब वजाई। लोग उन्होंने विरासी कहते सन, पर हजूर ने उन्होंने जिहड़ा शब्द दिता उन्होंने भाई दिता है। तो इत्थों तक ये शब्द कह देने मरदानिया, जिथे मेरा वासा उथे तेरा वासा। अगली गल थोड़े जे मैं नुकते, कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि इंज लगेगा शायद कई विषय शुरू कर रहे हैं, पर मैं बेनती कर लगा भी इसका कारण की। अज भी प्रॉब्लम ये है, अज भी मुश्किल यही है। गुरु नानक साहब जी ने दूसरी गल, वड्डियां स्यों क्या रीस। इको शहर दे विच दो ने, एक भाई लालो है, दूसरा मलक भागो है। जिहड़ा वड्डा है वह आमंत्रित भी करदा है, सदा पुत्र भी दिंदा है, ओहदे घर नहीं जांदे। ते जिन्हें आमंत्रित नहीं किया, जिन्हें बुलाया भी नहीं, ओहदा दरवाजा खड़का के उहदे घर चले जाते। हिस्टरी च किते नहीं आउंदा भाई लालो साहब ने सुनिया घल्लिया बाबा जी तुसी आयो दर्शन बख्शियो, ओहदे घर जांदे आ ते फिर उस दे घर जाके कहंदे आ कि भुख लगी है कोई शकन नूं दे, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच उस गुरमुख दा नाम ओनू संबोधन करके बाबा जी 7 वारी वे लालो कह के पुकार दे। जैसी मैं आवा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, उस विच सतगुरु वे लालो कह रहे। जदों उस दे घर जांदे आ, ये बड़ी वड्डी सट सी उन्हां लई, वड्डियां लई। वो कहंदा चौंका साफ कर लगदा है, पोचा फिर के महाराज कहंदे लालो सारी धरती ही मेरा चौंका। मैं एक बेनती करा, एक बड़ी वड्डी गल सी, पर इन्नी नहीं कि सिर्फ सतगुरु दे घर गए। उस तो अगली जड़ी बात है आई मुश्किल अज हो रही है। असल च गुरु नानक साहब ने भारत वर्ष विच जिथे जिथे भी रुखानियत दे शिखर ते पहुंचे हुए, उन्हां तो पहला भावें उन्हां दे समकाली जिन्ने महापुरुख सन उन्हां नूं शब्द बाणी च असीं भगत किया, उन्हां सारे महापुरुखां दी बाणी नूं गुरु नानक ने एक जगह ते इकट्ठिया कर दिया। सारी बाणी नूं महाराज ने इकट्ठिया कीता। ते उस विच मैं खास करके 2 उदाहरण देनिया चाहांगा। मैं सिर्फ जात की गल कर रहा क्योंकि इत्थों की त्रासदी सी। पिछले दिन मैं दिल्ली भी क्या यह शब्द वरत्या, फिर उठी आखिर तौहीद, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। इकबाल कह रहा धन गुरु नानक साहब महाराज। मैं शायद अगे भी एक कथा की हो, सिर्फ मैं 3 उदाहरण देंगा। एक हुंदी है पुराणिक उदाहरण, बाणी च बड़ियां ने, उन्होंने असीं इग्नोर नहीं कर सकते। जिवें राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो कर जैसे, ये पुराणिक उदाहरण है। पर एक हुंदी है कि जिस बंदे ने शब्द कहे ने ओदे नाल बीती होवे खड बीती। गुरु ग्रंथ साहिब च 3 महापुरखों जिते वैसे बाणी विच अनेकां ने जिक्र 3 महापुरखां ने इस त्रासदी दा जिहड़ी जात दे आधारत सी इस भारत च 3 महापुरखां ने अपनी रचना विच बड़ा खुल के जिक्र किया। भगत कबीर साहिब जी, भगत रविदास जी महाराज ते तीसरे भगत नामदेव जी। सिर्फ एक बचन असीं लांगे। भगत कबीर साहिब उन्होंने इस हीणता नूं भी चढ़दी कला च बदल के रख दिता। हीणता का मतलब कह दिता भी तू जुलाक है, पर उन्हें हीणता नूं स्वीकारिया नहीं, हीणता नूं चढ़दी कला च बदल दिता। उन्हें शब्द क्या कबीर मेरी जात को सबको हसना खार, बलिहारी इस जात को जे जप्यो सिरजन खा। हुण फिर बेनती है
है तां हीनता सी जुलाहा, पर उन्होंने इस हीनता नूं भी मैं बेनती करा चढ़दी कला च लै लिया, हीनता नहीं रहन दिता। फिर हालांकि इस गल के उत्ते उन्हें चोट लांदियां कहा जिहड़ा शब्द असीं पढ़ने आ कि गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहोरे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म मत खोए। उस विच उन्हां दा बचन जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। ये बड़ी वड्डी गल है, एवें नहीं जिहड़ा भगत इन्नी मिठे रब दे नाम रस दीयां गल्लां करदा, राम रस पिया रे, जिहड़ा इन्ने रसां दी गल करदा ओदी ज़बान ये कह रही है कि जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आए। ये समस्या सी बड़ी वड्डी कि केड़ा जागृति दे रहा ना। उस तो बाद ने भगत रविदास जी, उन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब 40 शब्द ने, तकरीबन प्रेमा भगती ही सारी, पर जदों जात की गल आई तो उन्हां महापुरखां ने शब्द कहे, भावां उन्होंने मिले कोई सत्कार का जिक्र भी किया, पर उस सत्कार विच भी पहला इस दर्द नूं बयान कर दिता, नागर जना मेरी जात बखियात चमार। नगर दे लोगो मेरी जात सचमुच सारी दुनिया नूं पता मैं चमार खां। नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। अखीर च उन्हें शब्द च कह दिता, मेरी चात कुट बंड ला ढोर ढवंता, नितै बनारसी आस पासा अब विपर प्रधान। याद रखियो सत्कार का जिक्र किया है, पर पहली तुक च उन्हें अपनी जात का कहा भी मेरी जात कट्टन ते कुट्टन वाली, चमड़े नूं कट्टन वाली ते कुट्टन वाली है। पर उन्हें परमेश्वर का शुक्र किया, मेरी जात कुट बंड ला ढोर ढवंता, नितै बनारसी आस पासा अब विपर प्रधान तै करे डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। मेरी फिर बेनती सुनियो, मैं कोई व्याख्या नहीं कर रहा, शब्द सिर्फ एक इशारा कर रहा। उस तो बाद भगत नामदेव जी ने उन्होंने शब्द जबान तो कहने वे, मैं तां क्या कबीर जी ने क्या कि जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रवै कबीर। जिक्र किया उन्होंने अपना। इस एक बार एक लहर उठी सी सिखां विच, ਇਹ जी भगत जात पात ਨੂੰ बढ़ावा दे रहे हैं, वो बढ़ावा नहीं सन दे रहे, उन्हां दी जात दे आधार ते उन्हां नूं नीच किया जांदा सी, ते उन्हां ने अपनी रचना च बड़े ठोक के, मैं कहांगा भी डंके दी चोट ते कहा, तू मैनू सच्ची मुच्ची जुलाहा कहना, पर मैं परमात्मा दे गुण ही दिन रात गाना। तीसरी मैं बेनती करा भगत नामदेव जी ने, ये शब्द तुसी सारे पढ़ते सुनने हो, मोको तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे रामैया। जहां उन्हां दा शब्द खस्त खेल तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हुण अगला शब्द कहना, हीनड़ी जात मेरी जात मराया। ये तीन गल्लां फिर सुनियो, नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग। दूसरा शब्द क्या, हीनड़ी जात मेरी जात मराया। कबीर साहब जी शब्द वरत रहे ने, कबीर मेरी जात को सब को हसनकार। तिन्हां ने जदों जात का जिक्र किया दा मतलब परमात्मा की इबादत करने वाले अडोल सुरत वाले, उन्होंने जात के आधार पर कितना पुनीवा दिखाया। हुण शब्द क्या, हिनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। मैं आपनों बेनती करा, गुरु नानक साहब जी ने सब तो पहला किरपालता यह की, उन्होंने जात के आधार ते जेड़ा मानव उत्ते जुल्म हुंदा पिया सी, ओदे बरखिलाफ आवाज ही नहीं केवल उठाई, सच एवे कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब विच सारे महापुरखों के अमृत शब्द रख के उन्हां दी इस रचना नूं जुगो जुग अटल कर दिता। गुरु अर्जुन देव ने सारियां दी रचना जात पात दे बंधन तोड़ के, खिते दे बंधन तोड़ के, भाषा दे बंधन तोड़ के एक जगह ते रख के ओनू गुरु ग्रंथ साहिब बना दिता। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने सच एवे अमृत दी दात दे के सारे बंधन तोड़ के ओनू गुरु पंथ बना दिता। सिद्धांतों काम करदा पिया। सुनियो थोड़ा जिहा टेक के बेनती, गुरु गोबिंद सिंह महाराज। हुण मैं दूसरी एक होर बेनती करांगा। इत्थे दो जणियां ने घेरा पाया, बुत पूजकां ने ते बुत्तां नूं तोड़न वालियां ने। पहाड़ियां ने भी पाया ते मुगलों ने भी पाया, तुर्कां ने भी पाया, रंगड़ भी आए। मैं पिछले दिन एक बेनती की थी, गुरु नानक साहब की बाणी ने
सच ए वे दोनों नूं इस परपंच पखंड नूं राजनीतिक ताला भावें असीं कई वारी कह दिंदे आ भी भाई साहब जी सुनने नूं मिलदा है कि तुहाडा काम है कथा करना, राजनीति की गल ना करो। तो मैं एक बेनती करा, कृष्ण जी उत्थे गीता का जिथे उपदेश देंदे पैने चलदी तां उत्थे भी राजनीति पई सी कि जंग दे विच राजनीति नहीं सी चलदी पई। राम राज की सी जदों चले गए रामचंद्र जी बनवास नूं ते लियांदा भरत खड़ावा रख के बैठा ते अज तक के राम राज दे गीत गाए जांदे आ कि वो अवतार राजनीति नहीं कर रहा, कि वो राज सत्ता ते नहीं हैगा। ये भी है कि राजनीति की गल ना करो। मैं एक बेनती होर करांगा, आना मैं इस थां ते वे सारा अज मेरे मन सी भी गुरु साहिब की बाणी नूं पढ़ो। आखिर एडा वड्डा सदियां दा वैर ते गुरु नानक ने किसी नाल वैर नहीं रखिया। सतगुरु कदी किसी नाल वैर नहीं कमांदा। हुण एक श्लोक मैं पढ़ांगा, इस पिछले दिन कथा भी कीती सी। इस विच तुहानूं आप सब नूं दोनों पक्ष उगड़ के सामने आ जाएंगे। हजूर दा एक पक्ष तां ओह वे कि ब्राह्मण किन्ना कु जलील हो रहा है ते दूजे पासे वे जिहदी हुकूमत है वह किन्ना कु बेईमान ते हसियारा हो चुका है। श्लोक तुहानूं सब नूं चेते जिहड़े पाठ करदे हो, ओह है गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाई, धोती टिक्का तय जप माली धान मलेशा खाही, अंतर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले हैं जाए तरंदा, मानस खाने करे निवाज शुरी वगायन तिन गल ताग। हुण मैं पिछले दिन ये अर्थ किते, अज मैं सिर्फ संखेप मात्र। गुरु साहब कहंदे आ तेरी एडी वड्डी गुलामी सी कदी तू ये दिन देखिया जदों गऊ नूं दरिया तो पार किया जांदा सी, चाहे ब्राह्मण चाहे गऊ, उन्हां दोनां नूं टैक्स लगदा सी। महाराज कहंदे आ एक खतरी बैठा कर वसूलण वाला ते ब्राह्मण गां नूं लैके आया ते ओने गां उत्ते ते ब्राह्मण उत्ते दोनां उत्ते कर लांदा पिया ते जदों कहंदा भी तेरी भी तां पूजनीक है। उन महाराज ने कह दिता सी जदों गऊ दी सौं चुकी, उन्हें कह रही ये तो पशु है, किहदी गल करदे पे तुसीं। हुण गुरु साहब कहंदे तेरी पूजनीक है, पर इहदे ते भी टैक्स लगा, ब्राह्मण ते भी लगा। पर जदों गां ने गोबर किया उस गोए नूं चुक के घर लै गया, इहदे नाल मेरा चौंका सुच्चा हो जाएगा। महाराज कहंदे ने गोया तां पवित्र हो गया, जिन्हें गोया दिता उहदे उत्ते टैक्स लाना पे, तू कादा आजाद है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि गऊ पूजा वाल पुरे रहे उपर कहते तू अपने आप को जिन्ना कहना मेरे धर्म के सिद्धांत ने ਉਹਦੇ मुताबिक गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई, धोती टिक्का तैजा माली धान मलेशा खाही। मलेशा का तू धान खाना जेड़े मैली बुद्धि वाले ने। अंतर पूजा वेखो सतगुरु की खेड है। अंदर बैठा लुक के तू सालग्राम या पत्थर की मूर्ति नूं पूजना है ते बाहर जदों जाना है कुरान की आयत दे कोई गल करदा ते इको दम कहना वाह वाह क्या खूब, इहदे वर्गा तां कोई सिद्धांत ही नहीं। बाबा जी कहंदे अंदर बैठा तू पूजा करना, बाहर जेड़े तेरे तौर तरीके ने वो सारे तुरकां वाले। गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई, धोती टिक्का तैजा माली धान मलेशा खाई। अंतर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंदा। हुण अगे सुनियो, मानस खाने करे निवाज, ये उन्हां नूं क्या जे गोबर वाले नूं क्या दूजे नूं क्या, तू बंदियां दा हक निचोड़ निचोड़ के लोकां नूं तू खा रहा है ते 5 वक्त दा नमाजी है। मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरा नाद। फिर सुनियो, हकूमत मुसलमान दी नमाज पढ़ने वाले दी, मैं किसी मुसलमान कम्यूनिटी नूं अटैक नहीं करांगा, पर जो उस वक्त दे हालात सन। महाराज कहंदे ने बंदियां दा माल खाण वाला नमाज पढ़ रहा है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ खतरी ने धागा पाया, सच्ची मुच्ची ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਧਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕਾ। मेरा ख्याल है अज भावें असीं स्टेज ते मोदन भी क्या कह देंगे,
ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੈ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂੜ ਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਖਿਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਅਭਾਕਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਭੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਠਾ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜਿਓ, ਕਿਤੇ ਚੌਂਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਣ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਛੇਤੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਹੇ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੋ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਹਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਦਾ ਲਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪਾੜਦੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਨਾ ਕੀਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋ ਸੁੱਟੇ ਸੱਚ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਲਤਨਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਤਨਤ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸ਼ਤਾਣੀ ਨੀਮਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
कि वो सच दा वो किला जिहदे विच सच दियां इट्टां ने, सच दी नींह है, गुरु नानक ने राज चलाया। पर फर्क सी थोड़ा जिहा। उंज गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर सो। रतन सिंह भंगू ने दी बड़ी डिटेल दी, कह लगे भी बाबर के दुनी पत ने, वह गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा जेड़े बाबे के ने दीन पत ने, दीन दी गल करदे। यही कारण कि इन्नी वड्डी सिखां उत्ते झनेरी हर सदी झुलदी पई है, फिर भी ये खत्म नहीं हुंदे। क्यों? क्योंकि जिहड़ा राज गुरु नानक ने चलाया, वो दुनिया दा कोई राज उस राज नूं खत्म कर ही नहीं सकता। मैं कला इमोशनल कर ली। वो कहते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिदी मदद तूफान कर लग पे, वो कदी बुझदी नहीं हुंदी शमा। थोड़ी जी तवज्जो दे, आज मैं आवांगा इसे दिन ते। मैं अर्ज कीती एक जात पात की गल, दूजी जिहड़ी मानसिक गुलामी सी, तीसरी मैं बेनती आप जी नूं कर लगा कि धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक नानक राज चलाया, सच कोट शतानी नीम दे। फिर उन्होंने एक सिक्का चलाया। समय नाल देखो करंसी जिहड़ी अंग्रेज़ां वेले होर सी, मुगलों वेले होर सी, समय अनुसार एक करंसी चेंज हुंदी रहिंदी। पर मैं फिर भी कहना, उन्हां सिखां तो भावें रियासतां सन, भावें शेरे पंजाब दा राज सी, घट्टो घट्ट उन्होंने नानक शाही सिक्का गुरु नानक दे नाम ते चलाया, ते वो अज भी पूरी महत्ता रखदा है सिक्का। हुण गुरु नानक साहब ने की, भाई साहब ने क्या मारिया सिक्का, जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। सिक्का भी राज भी ये सच दा राज सी। पर फर्क है, बाबर मरदा है, मरण तो बाद खमायू गद्दी ते बैठदा है। मरण तो बाद मैं कह रहा, गुरु नानक साहब अपने 5 पूतक चोले विच जोत वरतदी पई है, पर अपनी खयाती विच अपने पुत्तां नूं तख्त नहीं दिता, अपने सिख नूं तख्त दे दिता, सेवादार नूं दिता है। फिर सुनियो, चलो इस मैं अगे भी कहा सी भी इहदा जरूर रोज सवेरे पाठ करया करो। नेम नहीं जिंदगी च कदी घटाना, जिन्नी उम्र घटदी पई नेम वधना चाहिए। जिहड़ा असीं ये पाठ करने, नौ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीम दे गुणा सद भैन भार आव कै पार अंगत दान पड़ीम दे। नानक राज चलाया सचकोट सतानी नीम दे, लहने धरियोन छत सिर। उत्ते छतर क्या है जी? लहने धरियोन छत सिर कर सिफती अमृत पीम दे, मतगुर आत्म देव दी खड़क जोर प्राकुवे जी दे गोर, चेले रह रास की नानक सलामत थीम दा। सलामत थीम दा आई वक्री खेड है, ये राज नहीं खत्म होना। सलामत थीम दा, नानक सलामत थीम दा, गुर चेले रह रासकी दे अर्थ यूं जी करिए, अनवय अर्थ करिए। नानक सलामत थीम दा, गुरु नानक साहब दा तन खयाती विच कायम है। अपनी सलामती दे वेले गुरु ने अपने चेले नूं नमस्कार कर दित्ती। रह रासदार थे इत्थे नमस्कार करांगे। गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीम दे। अगली गल जिहड़ा शब्द वरत्या, सह टिक्का दितोस जीव दे। टिक्का देना एक चिन्ह है, जिउंदे जी टिक्का देना। हालांकि इतिहास ने तिलक क्या, गुरबाणी ने क्या कि रामदास सोटी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान दियो। मेरी अर्ज है हुण सह टिक्का दितोस जीव दे। अगे फिर कहने लहने दी फेर आई है, नानका दोही खटी है, जोत ओहा जुगत सह सह काया फेर पलटी है, झुलै सो छत निरंजनी। मैं उस बेनती ते लगा भी एक आ बराबर प्रॉब्लम ए वे कि गुरु नानक साहब दा शब्द जेड़ा है वो चवर छतर तखत दा मालक है। ये हर सदी विच झूठे तखत ते बैठिया होया नहीं वंगार बन जाता है, क्योंकि इस सच दे राज ने कदी खत्म नहीं होना। इस बेनती नूं फिर मैं अर्ज करा, रबाबी कह रहा गुरु के लहने दी फेर आई है, नानका दोई खटी है, जोत होआ जुग सह सह काया फिर पलटी है, झुलै सो छत निरंजनी, मल तख्त बैठा गुर हटिया। प्यारिओ ओ तख्त, मैं सिर्फ कुछ उदाहरण ट्यूक मात्र, तुसीं बहुत सियाणे गुरमुख प्यारे विद्वान बैठे हो। भाई अमरीक सिंह जी भी आए आ, भाई
हरपाल सिंह जी तुहाडे इत्थों दे गुरमुख कथावाचक भाई साहब कह रहे, मैं तो क्या सी लवाओ टाइम है कि नहीं जी। बहुत चलो जी नौजवान पीढ़ी आ रही है, तो मैं बेनती करांगा कि जे इहो जिहे सूझवान कथावाचक ने खेड़ा साहब बैठे, इन्हों मंजी साहब च फिर जरूर मौका मिलना चाहिए कथा करने का। फिर खैर मैं विषय ते रहा। सतगुरु गुरु अमरदास तख्त ते बैठते हैं, जोत उन्हां कोल आउंदी। बाणी ने जिहड़े लफ्ज वरते वो राजनीति वाले लफ्ज ने, चंदोवा, तख्त, टिक्का। फिर सुनियो, गुरु नानक साहब ने नहीं वरत्या, उत्थे सिर्फ इको वरत्या भी नानक राज चलाया, पर यह नहीं कहा भी गुरु नानक नूं किसे ने तख्त दिता। सारी बाणी आप जी पढ़ियो। हाँ, अकाल पुरख का जिक्र चलेगा, किसी व्यक्ति ने नहीं। हुण जदों गुरु अमरदास का समा हुंदा है ते उदों भी वो शब्द वरतदे आ, गुरु के रबाबी साहब सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यू दादे जे विहा पोता प्रवान। मैं पहलियां तो कार्ज कर रहा। टिक्का बहना ते दीवान ये सारे शब्द राज नाल संबंधित ने। उन्हां दे मत्थे दे उपर ओही जलाल है, ओही उन्हां दा तख्त है, ओही उन्हां दा दरबार है। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यू दादे जे विहा पोता परवान। जदों गुरु रामदास आउंदे आ ते फिर वो शब्द वरदे आ भट्ट साहब राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। जदों गुरु अर्जुन देव आउंदे आ फिर गुरु के रबाबी बोलदे आ तख्त बैठा अर्जुन गुरु। तख्त बैठा क्या, क्योंकि तख्त नूं प्रॉब्लम रहेगी, भावें खिमा करियो इहदी सल्तनत जे कौमे के सिक्के जां राज भाग में उस दिन भी दिल्ली क्या, पर जेड़ी शब्द दा सिक्का गुरु नानक ने अपनी उम्मत दे अंदर चला दिता है, उस शब्द दे सिक्के नूं ना कोई धरातल खो सकदा है ते ना कोई हुकूमत खो सकदा। धरातल दा मतलब कला पंजाब च ते नहीं ना, जिथे जिथे सिख। हुण उत्थे भट्ट साहिब जी ने कहा ते रबाबी कहंदे तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोवा। जदों गुरु हरगोबिंद साहब बैठे चलो ढाडियां ने क्या सच्चा तख्त सुहायो श्री गुरु पाए कै सब बरनी न जाए कहूं क्या गाय कै। गुरु हर राय साहब उन्होंने हक परवर हक केश गुरु करता हर राय सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। वो सुल्तान भी है, बादशाह भी है, दरवेश भी है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह होंदे ने ते सचमुच हिंदुस्तान दा बादशाह कोई तवारी कहंदी है कि बादशाह अगे खलोंदा है, पर महाराज सच्चे तख्त दा मालक उन्होंने कहता है यही सलोक सुना दो, क्या खादा क्या पैदा कोई जामा ना ही सच्चा सोए, क्या मेवा क्यों क्या गुड़ मिठा क्या मैदा क्या मास। ये सारा महाराज कहते। इसका मतलब दुनिया का तख्त खेच है नाम तो बिना। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह हुंदा है। मैं अर्ज करा ध्यान दिया जे, दो जणियां ने घेरिया सी, बुत पूजन वाले ने ते बुत तोड़न वाले इकट्ठे हो गए, दोवें इकट्ठे हुए थे। गुरु तेग बहादुर साहब कोल आउंदे ने। मैं फिर आपको बेनती कर लगा भी इस करके मैं शायद अपनी गल तुहानू बेनती कर सका सही कि मेरे कहन तो मुराद ये जिहड़ा घर है ये पिछे रूखानियत का एक सोमा है। उस सोमे विचों सिक्खी का चश्मा निकलता है। हाँ, जे किते दुनिया का हुंदा ते अज तक सुक जांदा, पर उस रूहानियत का जिहड़ा सोमा है जिहदे विचों सिक्खी का ये चश्मा निकलता पिया है, ओनू कदी भी किसी समय की कोई हकीम हुकूमत नहीं खत्म कर सकती। गुरु तेग बहादुर साहब कोल आए असीं सारे जानने। तो मैं एक बार इत्थे कहा सी, सरदार कपूर सिंह हुणां ने ये गल कही सी जलंधर रेडियो ते बोलदियां। उन्हें क्या गुरु तेग बहादुर की शहादत धर्म की रक्षा लई, धर्म की स्वतंत्रता लई ते आत्म पुरख की गौरवता लई हुई। उन्होंने हजूर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की उदाहरण दी सी। मैं फिर शब्द वरतांगा, आप कहांगे धर्म की रक्षा ते धर्म की स्वतंत्रता दो वक्रे वक्रे ने। हाँ, धर्म की स्वतंत्रता है तिलक जन्यू राखा प्रभता का, उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता है। ते जेड़ा धर्म की रखिया धर्म हेत साका जिन किया, यदा मतलब कि धर्म केवल कहन मात्र नहीं,
ਮਾਤੂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਉਡਾ ਦਿਆਂ, ਜੰਜੂ ਉਡਾ ਦਿਆਂ, ਆਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਧਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਧੁਰ ਪਰਮ ਪਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਮਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਰੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ। ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਈਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਵਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਡ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਚਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 8 ਪੋਹ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਉਂਝ ਨੂੰ ਪਖਵਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ 15ਵਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਰੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਵਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕੇ ਏਜ ਦੋ ਗਵਾਹ ਅਸ ਜਜਦਾ ਯਕੇਸਤ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤੁਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ, ਅੰਨ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।
पर मैं बेनती करा, गुरु साहब ने जो पहला शेर लिखा, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज करे हाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਐ ਸਰਸ। ਹੁਣ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਾ ਇਤਬਾਰੀ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕੇ ਇਜ਼ਤ ਗਵਾ ਅਸਤ ਯਜਦਾ ਜੁਕੇਸਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, मैनू तेरी चुकी हुई कुरान दी कसम ते कोई भी भरोसा नहीं कि इज्त गवाह अस्त यजदा यकेस्त, इस गल दा साखी, इस गल दा गवाह पार ब्रह्म परमेश्वर है। इहदा अर्थ इवें कीता जांदा है कि गुरु साहब कह रहा, तेरी कुरान दी कसम दा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अगे क्लीयर करनगे, कहंदे सच ये वे कि तू बेईमान निकलिया, पर मैनू केवल अपने अकाल पुरख वाहिगुरू का भरोसा है। वो इस गल का गवाह है कि इज्जत गवाह अस्त यजदा यकेस्त। अगे फिर सतगुरु थोड़िया जियां मैं बेनतियां करांगा कि दास्तान लिख रहे हैं, पर उस दास्तान विच चढ़दी कला किन्नी है। हजूर ने उस विच जदों कसम का जिक्र किया, फिर उहदे विच एक शेर है, बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में, बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में, न यक गाम हम पेश अजा बुर्द में। मैं सीधे जे पंजाबी च अर्थ करा कि बा मुसब का अर्थ हुंदा वैसे धर्म ग्रंथ, इहदा कुरान कर दो। हजूर कहंदे ने तू तां लिख के सौ चुकी। तो मैं पिछले साल आपनूं एक बेनती कीती सी कि ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुलशन उन्हां ने जफरनामे का टीका कीता है। उहदे विच उन्हां ने ये लिखिया है कि असल च उस कुरान दे नूं देखिया सी। साडे एक बहुत सियाणे विद्वान होए, चलाना करके उन्होंने हथ लिखत की बहुत पहचान सी, अपना मनोहर सिंह जी मार्को, जिन्हां दी बड़ी किताब चिट्ठियां लिख सतगुरां वल पाईयां। वो कहंदे मैं उस कुरान दे दीदार कीते जा मैनूं देखिया, उहदे उत्ते चिट्ठी चिपकी होई सी, ओही कसम वाली। कहंदे उन्हें इन्ने पैसे मंगे, मैं प्रबंध किया, बंदा इनकार कर गया। ज्ञानी गुरबख्श सिंह उन्हें अपने उस टीके च लिख दिया शेर थले, बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में। तो मैं फिर आपनूं बेनती करा, कदी ये ना देखियो गिनती करके तुसी थोड़े हो, सिख तां कदी इस मसले च पैंदा ही नहीं। आउण वाला समा जिहड़ा आ रहा, गिनती करके वोटां करके हेरा फेरी बेईमानी पाप किते जाणगे। जदों सदगुणां दी गल चलेगी, गीटे ते बड़े मिल जाणगे, पर चमकदा हीरा इक्को भी सारिया गीटियां दा मुकाबला करूगा। गुणां दी कीमत पैगी अच। मैं उत्थे जाके मैं कहना इन्ने गुण ते सतगुरु अगे अरदास करो, सतगुरु ये ताज तेरे सिखां दे सिर ते जरूर बचे। देखो अजे सुनाओ समुंदर में बेनती करी गई। गुरु गोबिंद सिंह कहते बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में। खुफिए दर था आप कहने गुप्त, जे मैं हजूर वेखो शब्द वरदे आ, कहते जे मैं खुफिए गुप्त भी कुरान की सौं खाधी हुंदी, हालांकि मैं फिर अर्ज की सौं का कोई कंसैप्ट नहीं। बा मुसब कसम खुफिए घर खुर्द में, ना या गाम हम पेश असा बुर्द में। मैं एक कदम भी अगे वादा तो मैं खुदा दा देनदार हुंदा, क्योंकि मैं धर्मी हाँ, मैं धर्म शब्द की पालना की। एक कदम ही तुरदा था। अगे फिर सतगुरु की लिखते हैं उस विच महाराज कहते कि पैमाशकन बेदरंग आमदन जिथे असीं बैठे हैं। चलो मैनूं पता सी हर साल अल्लाह यार खां जोगी नूं कोट करने आ, तुसीं लिखिया भी है सामने ओदा शेर। पर मेरी बेनती से अज भी जो गुरु गोबिंद सिंह अपने अपने मुख तो कहते हैं उन्होंने जरूर असीं पढ़ीए। हजूर कहते हैं कि पैमाशकन बेदरंग आमदन, कहते कसमां चुक के कसमां तोड़न वाले तेरे सूबे जिहड़े ने वो आ बैठे, उन्होंने घेरा पाया। हजूर ने शब्द वरते कि पैमाशकन बेदरंग आमदन, म्या तेगो तीरो तुफंग आमदन। इन्ने बेईमान सन। महाराज कहते ये करपाना, ये तलवारां, ये तीर, ये बंदूकां लैके आए। अगे फिर पता महाराज कहते बालाचारगी
धर्म आमदंद। हुण ये शब्द नूं कमजोरी नहीं समझना, मेरी बेनती है। हजूर कहंदे ने ये घर दरवेशां दा, इबादत वालियां दा है, पर सच्ची मैनू महाराज कहंदे जदों जिस कुरान दी आयत ने तुहानू खुदा दे घर च जन्नत च थां दवानी है, जदों तुसी उस कुरान दी कसम चुक के भी मुकर गए, फिर मैनू अगा भी अज इन्हां दा सिर तो पानी लंघ गया, हुण मैदान विच उतरना पैना है। बाल आचारगी दरमिया आमदन बा तदबीर है, तीरों कमाम आमदन। महाराज कहने फिर मैं उतरिया, तीर नाल, कमान नाल, शस्त्र नाल उतरिया। इस विच दो शेर खास करके इन्नी चढ़दी कला दे, क्योंकि मैं फिर बेनती करा एक गल याद रखियो, सच वक्ती तौर ते हारदा दिसदा है, झूठ वक्ती तौर ते जितदा दिसदा है, पर समा आउंदा है जिहड़ा झूठ है उहदा नामो निशान मिट जांदा है, जिन्हों हारिया कहंदे ओ सदा लई जित्तिया रहिंदा। ये भाई साहब ने एक शब्द वरतिया गुरदास ने, गुरमुख हार चले जग जीता। धरू वाली जिहड़ी सारी वो पौड़ी है, गुरमुख हार चले जग जीता। इंज लगदा भी हार गए, सच्ची जे जदों महाराज निकलदे आ, साहिबजादे इत्थे शरीर पए आ, संस्कार करन वाला कोई नहीं अजे, ते जे अजकल दे हुल्लड़ां जेड़े हुल्लड़बाजी करदे आ, तां ही कहंदे होणगे देख दिता, ठोक दिता, पुत्तर भी पए ओहदे मैदान च, आ भी कीता। वक्ती तौर ते लगदा होना गुरु गोबिंद सिंह इत्थों चला गया, पर समा हस के कहंदा हुण नहीं होए, जिस तखत दे जिस राज ते वो विराजमान है, सदियां भी लंघ जाणगियां, ओहदा नाम दा निशान हमेशा इत्थे झूलदा ही रहेगा। ये एक सच है। उस विच दो शेर खास करके, एक तां चलो महाराज ने दस्सिया भी किन्ने ने, 2 वारी 40 का जिक्र किया जफरनामे च, 2 वारी। कुरसना चे कारे कुनद चेहल नर के दा लख बरायद बरो बेखबर। दा लख क्या कि 40 ने जिन्हां ने प्रसादा पानी नहीं छकिया, रोटी पानी नहीं खादा, ते 10 लाख ने घेरा पाया, लखां ने घेरा पाया। ते यह भी क्या, इस तरह कालियां वर्दियां पा के, काले कपड़े पा के बैठे आए, जिमें शहद दियां मक्खियां कालियां तुरियां होंदियां, तोड़ तोड़ तक शाही फौजां। गुरशना चे कारे कुनद चेहल नर के दा लख बरायद बरो बेखबर। अचनचेत बेखबर आ टुट पे 10 लाख ते एक पासे 40। उस तो बाद मैं बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह दी अंदर दी सुरत दी अडोलता असी कहण वाले कथा च कह जाने आ, पर सच्ची है कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा जिगरा संसार विच किसी भी अवतार ते पीर पैगंबर दा कहना सौखा है। हजूर सच्चे पातशाह देखो उन्होंने 2 बचन चढ़दी कला दे इस दास्तान विच ने। इस दास्तान इथों पहला जिहड़ी है उहदे विच एक तां है कि खुमारा कसा साया के आद बजेर बरो दस्त दार्द ना जागे दलेर। हुमारा कसा साया के आयद बजेर कहंदे मेरे सिर दे उत्ते खुमा दा साया है। क्या जांदा खुमा पंछी जिहदे सिर तो लंघ जाए वो भागां वाला। याद रखियो ये पश्चिम विच उदाहरण लई जांदी है, अरब विच। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच उदाहरण पुराणिक उदाहरण बहुत ने, ते मैं एक दिन कहा सी उन्हां उदाहरणां दे गुरु ने अर्थ बदल के रख दिते। उदाहरण ने पिछले दिन ही पढ़िया, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जांका वासा काम तेना। ते मैं एक दिन सोचा भी परमात्मा दे बस काम तेन कोई किते, पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं काम तेन मनी। महाराज ने कहा कि पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम। अर्थ बदल दिते ना, लफ्ज वही वरते आ, अर्थ बदल दिते। हजूर ने कहा क्या जानता है कि जिदे सिर तो खुमा पंछी निकल जाए वो खुशकिस्मत हुंदा है। कहंदे मेरे सिर दे उत्ते अकाल पुरख वैगुरु दा साया है। हुमारा कसा साया के आयद बजेर, बजेर मेरे उत्ते साया है। हुमारा कसा साया के आयद बदेर बरो दस्त दार्द ना जागे, जागे दर थे कां तेरे वर्गे चलाक कां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जिदे सिर दे उत्ते रब खलोता हो। बस अज ये गल चेते रख के तुरियो। मेरी बेनती अज दे कंसैप्ट विच मैं कई बार क्या कहते भी ये तो बड़े थोड़े जी इन्ने। मैं क्या उत्थे दमदमा साहिब जो महाराज दिल्ली में जान लगे डल्ला ते मल्ला दोवें सन आवाज मारी,
ਉਹ ਡੱਲਾ ਉਹ ਮੱਲਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਲਾਂਗਾ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਫਾਰਸੀ ਚ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਮਦੋ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ, ਹਮਦੋ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ। ਇੱਕ ਹਮ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ, ਦੋ ਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂ ਦੂਜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਮ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। मेरी फिर बेनती है, कुमारा कसा साया के आयद बजेर बरो दस्त दार्द ना जागे दलेर। अगला बचन कसे पुश्त उफ्तद पसे शेरे नर ना गिरद बूजो मेशो आहू गुजर। जेड़े शेर कुल जेड़ा खलोता होवे ओदे सामने बकरी भेड़ ते खरन ओदा की बिगाड़ सकदी है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने जफरनामे विच इथों दा सारा जिक्र कीता ते मैं बेनती करां इत्थे ओ गल वापरी जिहड़ी असीं अक्सर पढ़ने, देश शिवा बर मोए ये है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं ना डरूं ना डरूं अरशों जब जाए लरूं। अगे की है बस आ सिखां नूं गुरु गोबिंद सिंह दिता है, निश्चय कर अपनी जीत करूं। मैं फिर दोहरान लगा, फिजिकल तौर ते भूगोलिक तौर ते साहिबजादे चले गए, 3 प्यारे चले गए, सिख चले गए। गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़े जाके जंगल च बैठे ने, पर सुरत करके गुरु गोबिंद सिंह कहता मैं मानसिक गुलाम कोई नहीं, मैं निश्चय करके अपनी जीत करांगा। जिस बंदे दा निश्चय कायम होवे ओनू मौत भी कदी डुला नहीं सकती। निश्चय कर अपनी जीत करो। इत्थे सतगुरु नूं घेरा पिया। मैं संखेप क्योंकि अज मेरी इच्छा सी कि इसका कारण कहते ये मत समझो भी ये कहानी इत्थे मुकेगी। ये जिन्नी देर तक निर्मल न्यारा नवेकला पंथ कायम रहेगा उन्नी देर तक चेते रखियो ये पैरल कूड़ ने चलना ही चलना। पात्र ने कहा सी जिस तेग दे घाट गुरु उतरे इस तेग तो खून सुकदा नहीं, भावें तिलक लगा के आ जावे भावें दस्तार सजा के आ जावे औरंगजेब साथों लुकदा। गल बड़ी उन्हें कमाल दी की। हुण सच्चे पातशाह महाराज गढ़ी च ने ते मैं हर वारी कहना कि वो पाक पवित्र धरती जिथे पिता विच मोह ना दी रंचक मात्र भी कोई चीज नहीं। याद रखियो जिंदगी एक बारी मिलनी है। कई बारी पुत्रां दे मोह कौम दियां बेड़ियां च वट्टे पा जांदे आ। जिहदा पुत दे मुंह तो मोह तो उपर उठ के कुर्बान कर जांदा कौम मरी होई नूं भी जिंदा कर जांदा। क्यों मैं इमोशन नहीं तुहानूं कर रहा, क्यों की कारण कि ये थोड़ी जी गिनती विच क्यों नहीं खत्म हुंदे। मैं बिल्कुल हुण सारी कहन लग पे जी जवानी आ जा गई जी, नशे वाले कित्थे गए जी, सारे बदल गए ना। मैं गुरु साहब तो पै खा के ना मैं कदी नहीं सी कथा च कहा भी पंजाब दी जवानी चली गई, कदी नहीं मैं कहा। कोई दिखा दो भाई साहब बैठा, कदी क्यों नहीं सी कहा? क्योंकि मैनू पता सी कि इस पंथ दियां नीयां विच बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दे खून दे तुबके ने। इत्थे गुरु ने कहा जुझार सिंह तू बिना बुलाया आया है, समा आएगा जदों कौम ते भीड़ा पैगी तेरे वर्गे जवान बिना बुलाया मैदाने जंग विच उतर। एक कारण है ते मैं प्रचारक वीरां नूं हाथ जोड़ के कहांगा 8 साल पहला सारे रोंदे सारे जवानी गई, जेडे 30-30 साल दे बैठे 8 साल च वड्डे हो गए ने।
इन्ना कुफर ना तोलो राजनीति पक्षों। वैगुरु असी गुरु दे देनदार हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा सच्चा सुच्चा वा, पर मैनू एक भरोसा है, ये गुरु गोबिंद सिंह दा साजिया होया है। एदियां जड़ां च गुरु नानक दे नाम दा सिक्का है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज संखेप बेनती करा गढ़ी च ने रात प्रवेश करते आ ते भाई दया सिंह नूं कहंदे आ कि अज आ थां आ गई, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। 8 पो दा दिन चढ़दा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी एक एक बाही ते 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 8 चौका 32, 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, भाई मदन सिंह, भाई काठा सिंह, चेते रखियो इत्थे कोई जात पात नहीं सी, इत्थे ब्राह्मण भी लड़िया। मैं सो काल जात करके कह रहा, तह साने सिख जिन्होंने मजहबी कहते वो भी लड़े, इत्थे छिंबे भी लड़े, जिन्होंने वाल्मीकि कहते सन वो भी लड़े। बस आई ते चमकौर दी गड़ी दी दात है कि जदों एक हो के तुर पैंदा उदों फिर जातां ते प्रांत दे रस्ते विच कदी आ नहीं सकते। भाई मदन सिंह काठा सिंह कौन सन जी? हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने देखा नाहर खां आ रहे, चलो उन्होंने कहा चुदीदम के नाहर ब्यामद बजंग, चाशीदे यके तीर मन भेद रंग। मैं कहना महाराज किन्ने ना चेते होणगे। नाहर खां चढ़ के आया, ख्वाजा महमूद आया जिन्हों गुरुदेव ने मरदूद लिखिया, उन्होंने ना चेते ने, बकायदा नाम लिखे कि नाहर ब्यामद, महाराज जी की चुदीदम के नाहर ब्यामद बजंग। मैं देखा कि नाहर खां आ रहा है, मेरे दीदियां ने चाशीदे यके तीर मन भेद रंग, मेरे एक तीर दा स्वाद नाहर खां ने चखिया, उस वक्त जमीन दे उत्ते ढेरी हो गया। अगे महाराज कहने क्या ख्वाजा मरदूद साया है दीवार। मैं कि सिर्फ जफरनामा कोट किया इस करके प्यारियों, क्योंकि जो गुरु कहता क्या ख्वाजा मरदूद साया है दीवार, नियामत बामदां बामरदां ने वार आया, पर मर्द बन के नहीं आया। देखो कहना नाहर खां आया, चंगे वार भी किते, कुछ झल्ला कमल भी मारिया। महाराज लिखते जफरनामे कहते कहते सियाणप वरती किते कमल मारिया, इनू आई ना जाच। क्या ख्वाजा मरदूद साया है दीवार, नयामत बामदां बामरदां ने वार आया जरूर, पर असल च मर्द बन के नहीं आया। मर्दां वाले गुण नहीं की कहते ने, दरेगा अगर रूबे आ दीद मंग, इत्थे पाठ भेद किसी ने दीद में लिखा है, दरेगा अगर रूबे आ दीद मंग, बा यक तीर लाचार बख्शीद मंग। सिर्फ चमकौर दी गड़ी च इको दरेगा अफसोस है, दरेग है। दरोग दा अर्थ झूठ हुंदा है, दरेग दा अर्थ अफसोस। इको अफसोस है कि हम ख्वाजा मरदूद निकल गया, नहीं तो मैं इहदा खोपड़ी भी ला के रख देनी सी। मैं एक बेनती करा, किड्डी वड्डी गल है। दोपहर तक जंग होंदी रही। धन गुरु गोबिंद सिंह उन्हें फिर बाबा अजीत सिंह जी नूं तोरिया। सेनापत कहंदा सांग टुट गई। सांग का मतलब जिहड़ा नेजा सी वो टुट गया। तलवार कड्डी, कहंदे ओहदी तलवार बिजली की तरह चलती सी। उन्हें 2 वड्डे, उन्हें 4 वड्डे, एक एक वार च उन्हें 4-4 बंदियां दे सिर ला के रख दिते। इस सेनापत कहंदा 4 बंदे इकट्ठे उन्हें चीर के रख दिते। आखिर बाबा अजीत सिंह जी इस धरती ते उन्हें शहादत का जाम पीता, ते पिता ने पुत्र नूं डिगदियां कहा, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। छोटे पुत्र नूं तोरियो ने बाबा जुझार सिंह। मैं फिर बेनती करा, किहड़े लफ्जां गुरु गोबिंद सिंह नूं किहड़े लफ्जां नाल असीं उन्हां दी सिफत करिए। छोटे नूं तोड़दे आ, ये कोई कहानी नहीं, कोई नावल नहीं। ते मैं एक बेनती करा, इस वक्त की हुकूमत नूं भी याद रखना चाहिए। रजनीश ने गल कही सी, वो कहंदा है इन्हां नूं तुसीं प्यार करोगे तुहाडी खातर जिंद दे देणगे, जे इन्हां नूं दबाना चाहोगे तो इन्हां दा मुकाबला तुसीं सदियां भर भी नहीं कर सकोगे। प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदा है वो ये प्यार करोगे तो जाना को के तुहाडी खातर मरनगे,
जे इन्हों दबाना चाहोगे तो मोढियां ते डांगा उलार के तुहाडे बूहे अगे जा खलोणगे। ਉਹਦੀ कविता पढ़ियो पंजाब, वो पढ़ने वाली जिहदे विच कहंदा पंजाब ना हिंदू दा ना मुसलमान दा, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। ये शब्द बड़ा डूंगा सी उसदा। हजूर सच्चे पातशाह बाबा जुझार सिंह जी नूं तोरदे आ, जिन्हों अल्लाह यार खां जोगी ने बड़े करुणामय ढंग नाल लिखिया है। हजूर नूं जाके जदों कहंदे ने भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता। महाराज कहते हमने ही कहा था बाप को जा दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजिए धर्म पर। अगे फिर वो तैयारी करांदा जिक्र करदा है, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेज़ों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। अगे जिलो जाओ सधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। जिहड़ा मूल पाठ नज़म दा उत्थे करतार को सौंपा नहीं, किसे चेंज कर दिता है। लो जाओ सधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। महाराज जदों शब्द कहंदे आ बेटा तुम ही ओ पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले देखे तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं खल्द में भैया। ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखे। प्यारियो पुत्रां नूं घोड़ी चढ़दियां तां मापियां देखिया, उच्ची तलीम लैके उच्ची पदवी ते पढ़दियां बहिंदियां वेख्या। लोग कहिंदे आ मां प्यो किते बीमार हो जाए कहंदे ने इहदी बच्चे दा विआह कर दिओ, ये वेख जाए। यही है ना जी, बच्चे दा सुख वेच जाए। दुनिया विच केवल एक गुरु गोबिंद सिंह मर्द अगंबड़ा है जिहड़ा कहंदा पुੱਤ मैं अपनियां अखां नाल तेरे सीने च बरशी वजदी देखनी चाहता, इसका कोई मुकाबला नहीं। बाबा जुझार सिंह उतरदे आ, रण तत्ते विच आउंदे आ, मुकाबला करदे आ। जफरनामे च हजूर कहंदे आ मर्दानगी बड़ी सी पर गिनती घट सी। कहंदे औरंगजेब गिनती घट सी पर मैं बेनती करां, जेड़ी सिंह दहाड़ सिंह गर्ज गुरु नानक साहब ने पैदा की, उन्हें चमकौर की गड़ी विच इतिहास सिरज के रख दिता। बाबा जुझार सिंह जमीन ते डिगदे आ, सीना छलनी छलनी हो जाता है। पिता गुरदेव वेखदे आ, पुत्र शहीद हुंदा है, पराई अमान क्यों रखी है दिती हूँ सुख होए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दी लखते जिगर शहादतां दा जाम पींदे आ। पर मैं तुहानूं सिर्फ डिटेल नाल किते बहुत दिनों की विचार होगी कि सच ये वे कि गुरु नानक साहब के घर दे विचों निकलदी सच की आवाज़ नूं सदियां तो झूठ मारना चाहता है। पता नहीं ये किहो जिहे ने, मारन वाले मर जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। साडे बजुर्गां ने एवें नहीं सिक्ख्या, मन्नू साडी दातरी। असी मन्नू दे सोए वेखे होने ने, सौंफ के पेडे वर्गे हुंदे, जिवें सौंफ नहीं हुंदी इस तरह हुंदा, इहनूं कट्टो ते मन्नू साडी दातरी। असी मन्नू दे सोए ज्यों ज्यों मन्नू वढदा, असी दूण समाए होए। इन्नियां बेनतियां स्वीकार करियो। मैं टाइम की थोड़ी जी उलंघना कर गया, प्लीज़ बख्श दिया जे। कल नूं आपां माछीवाड़ा साहिब पहुंचना। मैं सिंह साहिब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी इन्हां नूं बेनती की सी, हर समागम च ज्ञानी हरपाल सिंह जी भी, ये भी आप जी थोड़ा। भाई अवतार सिंह की प्रोग्राम लगे, हाँ जी। तो कल नूं आप जी माछीवाड़े आओ तो गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण परसीए। तो मेरी बेनती है जिन्ने तुसी नेम निभाते हो ना अपने अमृत वेले, जदों जदों अपनी अरदास करते हो प्यारिओ, उन्हां लई जरूर अरदास करियो जिहड़े पक्की सड़क उत्ते बैठे हुए। प्लीज़ मेरी बेनती है, मैं ये कोई राजनीति, मैं कभी किसी इकट्ठ च नहीं गया, असलीयत है मेरी, वेख लो। नहीं, सच्ची मुच्ची उन्होंने बंदियां ने कमाल करती। मैं गया पिंड हरियाणे च,
ਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ सरदार आ गए, दुकान को आग लगाएंगे, सड़ जाएगी दुकान। उन्होंने कहा कहाँ से आए? कहता पंजाब से। सरदार है ना? कहता जी। कहता बेटा दुकान खोल, जहाँ पर सरदार होगा वहाँ पर आग कभी नहीं लगेगी। मैं एक बेनती करा, इस सिदक नूं तुसीं इतिहास सिरजन जांदे पए हो। मेरी फिर बेनती, ये अरदास करो प्यारिओ, अरदास तो बिना डोलता नहीं मिल सकती। जे सतगुरु कहंदे डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ये अपने नेम तो बिना दवैश च रख नहीं। मैं उदन भी क्या भद्दी लफ्ज शब्द ना वरतो तुसीं। सिख दे शब्द इहो जिहे होने चाहिए ने। मैं हुणे तुहानूं कहा जदों जफरनामा शब्द पढ़िया होवेगा, औरंगजेब तां गया भी ये की लफ्ज आ गया। लफ्ज नहीं भैड़े वरतने चाहिए। कोई भी हो जो विच मैंने ना सुनने कोई कविशर जट सारे चंगे आ, मैं मैनू गालां कड्ढण लग पैणगे, पर मेरी बेनती है कि वे लफ्ज ना माड़ा वरतो, क्योंकि जिहदी माचिस दी तीली पहला सड़दी है तां दूजे नूं अग लांदी है, ते दूजा सड़ेगा तो कहेगा शायद इहदी जुबान भी सड़ी होनी। इस करके मेरी बेनती है, आओ हुण आनंद साहिब दा पाठ